नमस्कार, मैं याशिका और इस समय मैं मौजूद हूँ सिलेक्ट सिटी वॉक में, जहाँ पर मिली के प्रमोशन के लिए पहुँची हैं जानवी कपूर, जिनसे हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनका फ़िल्म को लेकर एक्सपीरियंस कैसा रहा है और क्या कुछ कहना है उनका फ़िल्म के बारे में। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बॉन्ड है। वो एक्चुअली पिछले कुछ सालों से मुझे ऐसे लगने लगा है कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह हो गए हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ इतना कुछ शेयर करते हैं। और जब से मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, मुझे ऐसे लगता है कि हम एक टीम है, एंड ही हैज़ माई बैक एंड आई हैव हिज बैक, और हम साथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। Hi, Janvi. This is Simmi Dhawan over here. हाय, आई गिव यू पॉपकॉर्न। Yeah, of course. Thank you so much. Janvi, my question is that this is the home production. So, how difficult or easy is it for an actor while working in the home production to balance that professional and personal life? Definitely, there is a responsibility on your shoulder as well. Can I be honest, ma'am? I think that because I've always my whole life been aware of the hardships that a producer can face if an actor is not cooperative. To put up one day of shoot, the kind of effort and money it takes. So I've been always my whole life very aware of it, and I know how much trouble my father has faced every time an actor has made his life a little difficult. So I, from the start of my career, promised myself that I wouldn't be such an actor. And as a result, I think I've been maybe overly diplomatic and polite on other film sets. The only difference on Millie was that because he was my father and because I didn't have the fear of है कहीं ये मुझे arrogant ना समझे ये producer हाँ मेरे बारे में क्या सोचेगा. I mean, I didn't have to think that because he's my father, he knows me better than anyone. I felt like I could tell him exactly what I thought when I thought, which was a good feeling. Hello, I'm Akash this side. Yeah. Hi. Hi, my name is Akash. I'm from filmykilla.com. So my question to you is that for this survival thing, did you take any kind of survival training or any such thing? Because it's not possible for a human being to survive at 18 degrees Celsius for a longer period of time. So did you take any survival training and stuff like that? No training actually, because my director said that मिली जो किरदार मैं निभा रही हूँ उससे तो कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी जब वो इस कोल्ड स्टोरेज में फंस गई थी, and he wanted to keep it as real as possible. तो he didn't even let me enter the cold storage before I got stuck or before I had to shoot those segments. लेकिन जब मैं अंदर पहुंची जो फटी नहीं क्योंकि इतनी ठंड थी वो स्टोरेज रूम के अंदर, और सबसे बड़ा मसला ये था कि हमने समर में शूट किया था ये, तो जब स्टोरेज से बाहर आप निकलोगे सो इट वाज 37 डिग्रीज आउटसाइड, तो वो अंदर बाहर में इंसान और बीमार पड़ जाता था. So I actually had to try staying inside as much as possible. Of course, टेक के बीच में मुझे एक जैकेट पहना देते थे, लेकिन हमारी टेक्स ही 15-15 मिनट तक चलते रहते थे, तो जो कुल्फी जम जाती थी ना मेरी. लेकिन हाँ, जब रैट आया था फ्रीजर के अंदर तभी हम सब ने रैट का बहुत ध्यान रखा. रैट एक्चुअली सेट का स्टार बन गया था. द रैट कांट स्टे इनसाइड फॉर मोर देन 2 मिनट्स, द रैट नीड्स अ ब्रेक, द रैट नीड्स रेस्ट. आई वाज लाइक मेरा क्या, मेरे लिए कोई रेस्ट नहीं. बट या. Thank you. Hi, Janvi. Hi. Ashu from Filmy Beat. So, congratulations. The trailer looked really intriguing. I'm looking forward to the film. So, the film is about survival, like you all saw. Real life में we know Janvi is a real strong girl. So, ऐसी situation जब आती है, of course not ऐसी, मतलब कोई भी difficult situation, what's your escape plan? I actually don't have an escape plan. I realized the best plan to have is to give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling, and just tell yourself that जितना भी मुश्किल हो ये दौर को भी गुजरना ही है, और जब ये दौर गुजरेगा आप और भी आप you'll emerge out of it stronger, आप और भी उससे उभर के निकलोगे. And that's what's happened. I think all of us are testament to that. हम ये जो कोविड के दौर से गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं, इस चीज़ ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है, but we've survived and we're surviving, and I think that now's the time where we've realized how every human has a survival instinct.
जानवी हाय हिमाचल इफेक्ट। हाय। जानवी इन दिनों जो है साउथ का क्रेज जो है बहुत ज़्यादा है, और हम आपकी जब फिल्में देखते हैं, चाहे गुड बाय जेरी और अब मिली का ट्रेलर देख के लगा मतलब कि आपको किसी आई थिंक को एक्टर की जरूरत नहीं है, आप अपने कंधों पे फिल्मों को आगे बढ़ा रही हैं जैसा कि हम देखते हैं। लेकिन जानवी कभी साउथ में फिल्मों से ऑफर आए तो जानवी किस तरीके से उसमें रिएक्ट करेंगी, हाँ बोलेंगी या ना? और साउथ का कोई ऐसा एक आपका एक्टर फेमस मतलब जो आपको काफ़ी पसंद हो और आप उनके साथ कोई काम करना चाहें कुछ? मैं डेफिनेटली आई थिंक मैं सालों से बोलती आई हूँ कि मुझे साउथ फिल्म करनी है। मैं बढ़ी हुई हूँ साउथ फिल्म्स देख देख के, और उनके गानों से मुझे जिस तरह से वो एक्ट करते हैं, जिस तरह से वो अपने एक्टर्स को दर्शाते हैं, जिस तरह से वो ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हैं, आई थिंक आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ साउथ सिनेमा। शायद इसलिए मैंने इतने सारे रीमेक्स किए हैं, लेकिन आई होप आई गेट द चांस टू डू इट। मैं तो कूद पड़ूंगी। आई थिंक वन एक्टर आई रियली वांट टू वर्क विद इज जूनियर एनटीआर सर। और फिर श्रीदेवी मैम ने भी साउथ की फिल्मों में बहुत काम किया है, तो उनका कोई ऐसा अगर रीमेक मिला आपको तो ऑफर आई थी? आई थिंक किसी को उनकी कोई भी फिल्म को रीमेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी उनकी तरह काम नहीं कर पाएंगे। हाय जानवी, इन फ्रंट, आपके सामने। सो जानवी, उनके पीछे छुप गए हैं। जानवी जब ये आपको मिला स्क्रिप्ट, आपको जब मिली कि स्क्रिप्ट आपको सुनाई गई, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि एक चैलेंजिंग रोल आप प्ले कर रही हैं, ऐसा आपने इससे पहले कभी नहीं किया। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन दिस रोल यू हर्ड अबाउट दिस रोल? सो ऑनेस्टली मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि ऐसा रोल जैसे कि आपने कहा किसी ने प्ले नहीं किया था। और आई थिंक बहुत लोगों ने मुझसे कहा था, जैसे कि जेरी साइन करने के वक्त कहा था कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, एक और फिल्म सिर्फ तुम्हारे कंधों पे, और एक और परफॉर्मेंस फिल्म, इसमें नाच गाना तो है नहीं, कॉमेडी तो इतना है नहीं, तो क्यों ये रिस्क ले रही हो। लेकिन आई थिंक एज एन एक्टर मुझे लगा कि ये एक मौका है जहाँ मैं अपने आप को कैमरे के सामने पूरी आज़ादी से दर्शा सकती हूँ, और इतना कुछ सीखने को मिलेगा। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और ओरिजिनल फिल्म देखी, मुझे डर लगा, और जब भी मुझे ऐसे डर लगता है, मुझे लगता है कि ये अच्छा साइन है, क्योंकि अगर मैं ये कर पाऊँगी तो मैं और भी बहुत कुछ सीख पाऊँगी मेरे कला के बारे में। तो आई थिंक वो सेल्फिशनेस की वजह से मैंने ये फिल्म की, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा है? ट्रैक इस मूवी में ट्रैक तुम भी राही। हेलो, जानवी सामिया हियर। यस, दिस साइड। सो मेरा सवाल ये है कि 4 नवंबर को XXL और फोन भूत भी रिलीज हो रही है, तो आप क्या कहना चाहोगे कि आपकी मूवी उनके साथ पेश कर रही है? आई थिंक बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि इतने वक्त तक कोई भी फिल्म थिएटर्स पे नहीं आ रही थी, ऑडियंसेस को कोई भी चॉइस नहीं था। इस वीकेंड अचानक 3 फिल्मों का चॉइस है, एंड आई थिंक 3 हर XXL, फोन भूत और मिली एक दूसरे से इतने अलग है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर फिल्म्स एंड ऑडियंसेस। आई होप कि ऑडियंसेस को मेरी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है ऑब्वियसली, लेकिन ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग तीनों फिल्म्स बहुत एक्साइटिंग लग रही है, और आई विश देम ऑल द बेस्ट, एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि हमारे फिल्म्स थिएटर्स में रिलीज हो रही है और ऑडियंसेस को मौका मिल रहा है थिएटर्स में वापस आने का। हाय जानवी दिस सेट है। नीचे मैंने अभी देखा था डाइंग टू सर्वाइवल लिखा हुआ है आपका टैगलाइन जो है, और ये बहुत चैलेंजिंग होता है जब आप एक ऐसा किरदार निभाते हैं जिसमें आपको कंटिन्यूसली एक्सप्रेशंस लाने होते हैं और एक्शन से ज़्यादा रिएक्शन चाहिए होता है, और कितना मुश्किल था उस इमोशंस को लाना, बिकॉज थोड़ी थोड़ी देर में आंसू आने थे, और बहुत कठिन होता है रोना मुझे लगता है, और सब उससे ज़्यादा कठिन होता है हंसाना। तो एक्शन से ज़्यादा रिएक्शन कैसा रहा इस फिल्म के अंदर? सर उन्होंने मेरे लिए कोल्ड स्टोरेज बना दिया था, तो मुझे कुछ इमेजिन नहीं करना था कि मुझे ठंड लग रही है। मुझे एक्चुअल में बहुत सफोकेशन और ठंड लग रही थी, और हमें ये फिल्म 9 दिन में, ये कोल्ड स्टोरेज का पोर्शन 9 दिन में शूट करना था। हमें 20 दिन लग गए और हम सब बहुत बीमार पड़ गए थे। तो हर रोज़ शूट के वक्त मुझे एक्चुअल में ऐसे लगता था कि मैं फंस गई और मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलने वाली हूँ, और मैं बहुत पेन में हूँ। तो आई डोंट थिंक आप इसे एक्टिंग बुला भी सकते हैं, क्योंकि ये सब हकीकत में था। और आपने जो कहा वो सही कहा, मेरे लिए रोना बहुत आसान होता है कैमरे पे और सीन्स पे, तो मुझे अभी बोल दो मैं अभी रो दूँगी। हंसाना मुश्किल है, इसलिए मैं
बहुत दिनों से ये कह रही हूँ कि मुझे कॉमेडी करना है, मुझे कॉमेडी एक्सप्लोर करना है, क्योंकि आई थिंक असली एक्टर का थप्पा तभी लगता है जब आप लोगों को हंसा पाओ। चलो आप फोटोशूट कर लेते हैं। आपने देखा कि जानवी कपूर का अपनी फ़िल्म को लेकर क्या कुछ कहना है। ये फ़िल्म 4 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है, तो इस फ़िल्म को देखने ज़रूर जाएं और हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको ये फ़िल्म कैसी लग रही है।